Hello and welcome again to a new topic. And this is not a topic, this is now a revision. We are going to revise the four chapters today. Chapter number 6, 7, 13th and 15th of class 6th. So first we are going to start with the introduction to algebra. Chapter number 6. So what is then algebra? So writing an expression using the numbers. Where's the numbers? Suppose 1, 2, 3, so on -1, -3. कोई भी number हम use कर सकते हैं. And then we can use the x, y, a, b, anyone words are there. And the arithmetic operations, plus, minus, or you can say the multiplication, division, anyone else. तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमें अलजेब्रा स्टार्ट करने में हेल्प करता है कि टू डील विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द अलजेब्रा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना कैसे है. अगर हमारे पास एक इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ टू राइट इट लाइक 7 लेस देन x. इसका मीनिंग क्या है? 7 x से कम है तो x माइनस 7 आएगा. Then the quotient of x and y. Quotient means we have to divide it. X upon y. 3 more than x upon y. 3 more. More means increase. तो x upon y plus 3. More होगा तो plus करना है. Less होगा तो minus. 5 times x added to 2 times y. 5 times x. तो 5 times x ये हो गया 5x. Then 2 times y ये हो गया 2 times y, 2 multiply by y. Times means we use multiply here, right? और more हो यहाँ पे plus और less हो तो minus. Plus और minus यहाँ पे use होते हैं. तो 5 times x, 5 into x added. तो added means plus. तो इन सभी expressions में हम देख सकते हैं we are using the numbers, we are using the alphabets and we are using some operation in between. ठीक है, तो operations हम use कर रहे हैं. तो 5 taken away. तो taken away means minus. So p minus 5. 5 is taken away from the p minus 5. Now we have the English written in the English. We change it in the algebraic expressions. Now if we have given this type of expression, how to write it in English? 2 upon 3x means 2 third of x. 2 upon 3 means 2 third of x. 5 plus x. So 5, or you can also write it like this: x added to 5. X added to 5. So your x more than 5 you can also use. So in this way we can write the expressions. If we are given in English, we can write it in the expression form or we can convert it in the different type. So these are starting of the algebra to write the things. Now we will move further. Let us move further. Suppose हमें ये statement दे रखी है, इसको हमने लिखना है. So there are 38 students in the class. If x more means plus होगा. More students join the class. What is the number of students in the class? तो 38 students थे इसमें. 38 students are there. x more हो गए यानी plus x हो गए. तो total number of students कितने रहेंगे? Total number of students वो 338 plus x हो जाएंगे. In the same way some properties are there for this. One is x plus y. If we add the two numbers, अगर हम दो numbers को add करेंगे तो अगर हम number को reverse कर देंगे, suppose 3 plus 4 simple is 7 और 4 plus 3 is also 7. So ये दोनों equal रहेंगे. But if we change their minus, अगर हम minus करेंगे यहाँ 3 minus 4 and 4 minus 3. 4 minus 3 is equal to 1, right? Or 3 minus 4 is equal to minus 1. So they are not equal. तो जगह दोनों numbers में minus होगा तो वो आपस में equal नहीं होंगे, plus वाले equate हो सकते हैं. In the next property, this is a commutative property called. So next property के अंदर x और y और z brackets में है तो x और y आपस में multiply होगा और x z के साथ भी multiply होगा. x y x z. और सेकंड नेक्स्ट थिंग इज x अगर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो x अगर डिवाइड होगा 1 से तो भी x. तो नाउ वी विल फिल दीज
3 क्वेश्चंस. 5y माइनस 0 उसमें से कुछ भी नहीं गया तो व्हाट इज लेफ्ट 5y. इन द सेम वे हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी थी इसमें मल्टीप्लिकेशन में भी चल जाएगी ये y इंटू एक्स जो यहाँ पे यूज हो रही है 3x इंटू 2y. तो 2y इंटू 3x ये वाला 3x यहाँ पे आ जाएगा. राइट. इन द सेम वे द नेक्स्ट x 2y प्लस z. तो x के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा. वी हैव अ 2y हियर तो 2y और z यहाँ पे हो जाएगा. जो ये प्रॉपर्टी है हमारी ये यहाँ पे यूज होगी. तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में. नेक्स्ट वी हैव अ a स्क्वायर. सो हिज बेस दिस इज अ पावर. सो पावर ऑफ द अल्फाबेट या लिटरल नंबर जो बनते हैं इसकी पावर्स हैं. तो जितनी पावर होगी उतनी बार रिपीट होगा. सपोज a 2 है तो a इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स. और ये है माइनस एक्स पावर 6 तो माइनस एक्स जो है वो 6 बार लिखा जाएगा. 1 2 3 टाइम्स, देन 4th, देन 5th, देन इट इज 6th. तो 1 2 3 4 5 6. तो अगर पावर 6 है तो 6 टाइम लिखा जाएगा. पावर 2 है तो 2 टाइम. जितनी पावर होगी उतने टाइम जो बेस है वो रिपीट होगा विद मल्टीप्लिकेशन. So in this way we can also write the different types of properties of the algebra. Now let's have some more things. Constant and variable. 2 things होती हैं. Constant जिसकी हमें पता है value not change. कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है. और वेरिएबल है वैल्यू चेंज्ड होगी. तो कांस्टेंट में कौन कौन आएंगे. जो भी नंबर्स आते हैं वो सारे कांस्टेंट्स में आएंगे. ठीक है. 3 -4 2 7 एनी नंबर्स. वेरिएबल्स में ज्यादातर हम x y z a b c ये सारे यूज करते हैं. और कांस्टेंट और वेरिएबल 2 चीजों को यूज करके और साथ में तीसरी चीज यूज होती है इसके बीच में ऑपरेशंस. ठीक है जी. ऑपरेशन में +1 तो 3x + 7 तो ये हमारी बन जाती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देन कोफिशिएंट. कोफिशिएंट मींस जो नजदीक होता है सभी के. जैसे ये -2y है. -2y के अंदर y का कोफिशिएंट क्या है. y कोफिशिएंट इनटू y. तो ये होगा y को छोड़ देना. जो ये y है इसको छोड़ दो. बाकी क्या आएगा -2 ये इसका कोफिशिएंट आ जाएगा. और इसमें अगर हम y का कोफिशिएंट इसमें करें तो आएगा 4x². तो y को हम छोड़ देंगे. बाकी जो सारा होगा वो कोफिशिएंट में चला जाएगा. ठीक है. जो उसके नजदीक होगा. अगर इसी में x² का कोफिशिएंट होता तो x² को छोड़ते तो बन जाता 4y. एक होता है ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मींस अब यही नंबर है इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा होगा 4. न्यूमेरिकल मींस यू हैव टू टेक ओनली नंबर्स. ठीक है. तो नंबर्स ही हमें लेने हैं सिर्फ. तो 4 इसमें आ जाएगा. अब हमारे पास बन गई जी सभी को जितनी आपको चीज बताई इन सभी को यूज करके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है. सपोज 3x + 2y + 7. तो ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई. इसमें हम एक और भी वेरिएबल भी लगा सकते हैं z. तो इसमें ये क्या है 3 2 7. ठीक है. ये 3 चीजें कौन कौन सी चीजें सपोज कौन कौन है ये 3 है, ये 2 है और ये 7 है. ये 3 थिंग्स है. इन्हें हम क्या कहेंगे. व्हाट वी कॉल इट. इट इज कॉल्ड कांस्टेंट्स. ठीक है. इनको हम कहेंगे कांस्टेंट. और दूसरी हमारे पास चीज क्या कौन सी है. बाकी क्या बच गया इसमें. और ये x है y है और z है. दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ये कांस्टेंट है सारे. ये वेरिएबल्स है. बीच में ये माइनस का या ये प्लस का और ये प्लस का ये सारे क्या हैं ऑपरेशंस. तो ये सभी मिलके कांस्टेंट्स वेरिएबल्स और ऑपरेशंस ये सभी मिलके बनाते हैं हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस. ठीक है. तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है. सारा
कलेक्ट करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आई है कि द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स प्लस ज्वाइंड बाय द ऑपरेशंस. नाउ द नेक्स्ट थिंग्स. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनने के बाद हमारे पास आ जाता है मोनोमियल. मोनो, इसका ध्यान रखना है आपने. तो ग्रीक काउंटिंग है. मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3. तो मोनोमियल, मोनोमियल में आ सकता है जी एक ही टर्म से. ऑपरेशन इज नॉट देयर, सिर्फ ऑपरेशन दोनों के बीच में कर सकते हैं हम. एक ही टर्म होगी जहाँ पे. बाइनोमियल में 2 टर्म्स आ जाएंगी. चलो जी 2 टर्म्स हो गई. और ट्राइनोमियल में हमारे पास आ जाएगी 3 टर्म्स. ठीक है जी. मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हमारे पास होंगी. उनको हम इस नेम से कहें. और 4 टर्म्स हो तो क्वाड्रिनोमियल्स. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास ऑपरेशंस. ऑपरेशन मींस एडिशन. तो 2 तरीके से एडिशन होती है. वन विद अ कॉलम मेथड एंड अदर इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मेथड. तो 2 हमारे पास इसमें है मेथड्स. अब पहले देखते हैं हम कॉलम मेथड क्या होता है. सपोज हमारे पास नंबर है 5a प्लस 2b. एक तो ये नंबर है. और दूसरा नंबर हमारे पास है 3a माइनस 12b. तो इसको ऐसे ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड कॉलम मेथड. कॉलम में लिखा हुआ है. अब हॉरिजॉन्टल में इसका लगाएं तो कैसे होगा. तो ये ऐसे चलेगा 2b प्लस, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो 3a माइनस 12b. तो ये दोनों में डिफरेंस है. दिस इज कॉल्ड द कॉलम मेथड. ऊपर नीचे लिखा है तो कॉलम मेथड. ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड. एक ही लाइन में चल रहा है. हॉरिजॉन्टल में, लाइन में, रो में चल रहा है. तो इसमें हम एडिशन कैसे करेंगे. सिंपल ऐड करना है हमने. 5 और 3 8a. राइट. सेम साइन. ऑपोजिट साइन. ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन होगी. हमेशा ऑपोजिट साइन की सब्ट्रैक्शन होगी. और साइन किसका लगेगा. ग्रेटर नंबर का. ग्रेटर नंबर कौन है 12. तो 12 का साइन लगेगा माइनस. सब्ट्रैक्शन हो गई तो 10b. 8a माइनस 10b. ये तो था कॉलम मेथड. ऐसे ऊपर नीचे लिख के हम इसको कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ हॉरिजॉन्टल मेथड. इसमें क्या करना है हमें देखना है. a यहाँ पड़ा है, a यहाँ पड़ा. इनको इकट्ठा कर देना. एक जैसी फैमिली के पर्सन इकट्ठे कर देने. और जो दूसरी फैमिली के हैं यानी जिनके साथ b है उनको सेपरेट कर देना. राइट. अब इनकी एडिशन हो जाएगी दोनों की. 5 और 3 कितना होता है 8. a सेम रहेगा. a नहीं चेंज होगा. a सेम रहेगा. फैमिली वही रहेगी. 2b माइनस 12. तो 2 और माइनस 12 साइन बड़े नंबर का. 12 में से 2 चले गए 10. तो 10b. आंसर तो सेम ही रहेगा. तो ये 2 तरीके के मेथड होते हैं. वन इज कॉल्ड कॉलम मेथड, अदर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मेथड. कॉलम मेथड हो तो आपने कॉलम्स में लिखना है नंबर्स को, चाहे उसमें 2 हो चाहे 3 हो. अगर हॉरिजॉन्टल हो तो हमें ऐसे हॉरिजॉन्टल मेथड में राइट डाउन करना है. इसका आपने ध्यान रखना है. एक क्वेश्चन और लेते हैं. अगर 3 टर्म्स हमारे पास हों. सपोज द क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3. एक ये है. सेकंड हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5 एंड 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर. तो ये 3 टर्म्स हैं. इसकी हमने एडिशन करनी है. यहाँ 2 थी, ये 3 हो गई. कॉलम मेथड ऐसे लिखा जाएगा. तो यहाँ पे हमें देखना है तीनों प्लस के हैं. 4 प्लस 2 6 और 3. ठीक है ना. 6 और 4 10 हो गए पूरे 9. सो 9 हो गया. ये हमने इसी को नंबर्स को ऐड करना ओनली. 4 5 6 और 3 9. राइट. जो दूसरा है वेरिएबल वो एज इट इज ही आ जाएगा. उसको कोई चेंज नहीं होगा. ये ध्यान रखना. एंड सेकेंड थिंग कीप इन योर माइंड कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर सेम फैमिली के पर्सन यहीं आएंगे सारे नंबर. चेंज नहीं करना. वाई एक्स स्क्वायर के बीच में वाई स्क्वायर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा. ये चीज का ध्यान रखना है. तो x जो है वो x ही आएंगे सारे.
नंबर्स ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही y के इकट्ठे आएंगे, कांस्टेंट हो तो वो अलग से आएंगे। तो अब इसको हम ऐड करेंगे नेक्स्ट को। यहाँ 5 और 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, देखो दिख नहीं रहा, कुछ नहीं होता तो वहां कौन होता है 1। तो 5 और 1 हो गया 6, टोटल हो गया 6। ये -8 बड़ा हो गया तो माइनस इसके साइन आएगा 2y²। ये प्लस का एक माइनस का, बड़ा कौन प्लस, साइन इसके ही आना है। ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगी तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल मेथड, अब इसमें हॉरिजॉन्टल मेथड कैसे लगेगा, ठीक है, इस चीज का हम यहाँ आपको बताते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड इसमें कैसे लगाया जाएगा। ये 3 टर्म्स आ गए हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 4x² प्लस y² -3, पहली ब्रैकेट हो गई, प्लस फिर 2x² प्लस 5y² प्लस 5, ये दूसरी हो गई, और तीसरी में आ गया हमारे पास 3x² -8y²। तो अब इसमें x² ये सारे उठा लेंगे, राइट, सारे x² इकट्ठे करने, फिर y² वाले इकट्ठे कर लेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट वाले इकट्ठे कर देंगे। सारे आपस में जो फैमिलीज हैं वो इकट्ठी कर दी हमने। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 + 2 6 और 3 9, आंसर तो सही रहेगा 9x²। यहाँ पे -2y² बनेगा और यहाँ पे +2 बनेगा। तो ये चीज़ हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, ये आपके पास कॉलम मेथड है। तो इसकी एडिशंस इस तरीके से होती है। Now we are going to start with the subtraction. तो subtraction कैसे हम करेंगे, तो subtraction के लिए हमने 2 नंबर्स लिए हैं। subtraction में ध्यान रखना है एक मेन चीज का, what is this from, तो इस from का ध्यान रखना है। from का मीनिंग ये है कि आपने 7x में से 3x माइनस करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं 3x और 7x को माइनस करके फिनिश कर देते हैं, बट फ्रॉम के बाद जो आएगी टर्म वो पहले लिखी जाएगी 7x सब्ट्रैक्शन 3x, तो 4x आ गया विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड होगा तो 7x अगेन -3x, तो 7x -3x 4x। तो इस तरीके से जो फ्रॉम के बाद होगा वो पहले लिखा जाएगा। इन दिस केस ये क्वेश्चन जो है हमारे पास -4a² प्लस 3b², इसको सब्ट्रैक्ट करना है, -3a² प्लस 2b²। अब क्या हो रहा है, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है। ये कौन सा लगेगा मेथड, कॉलम मेथड। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड से इसी को करें तो लगेगा ये -4a² प्लस 3b²। फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले लिख रहे हैं, माइनस क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -3a² प्लस 2b²। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। ये जो माइनस था ये क्वेश्चन में ही है, दिया हुआ है हमें, ये रहा क्वेश्चन में माइनस, और ये जो माइनस है ये सब्ट्रैक्शन से आया। और अब ऊपर कॉलम मेथड में बहुत ध्यान रखना है, ये फ्यूचर में भी आपको काम में आएगा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। पहले की थी हमने एडिशन तो कुछ नहीं किया, यहाँ हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के कारण ये साइन बदलेगा, कौन सा, नीचे वाला, ये माइनस था ये अभी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे पास जो होगा ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस में। तो ये साइन जरूर चेंज करने हैं। यहाँ पे पहले से ही हमारे पास ये आ रहा है माइनस, ठीक है, ये माइनस, ये भी साइन चेंज करेगा, अभी दिखाते हैं आपको बाद में। पहले हम कॉलम मेथड करते हैं। कौन बड़ा है इसमें, कैप बड़ा, देखो a² के नीचे a², b² के नीचे b², इसको नहीं भूलना है कभी भी। 4 और 3 बड़ा है 4, तो ऑपोजिट साइन है, ये साइन अब इसका नहीं रहा। अब कौन सा साइन हो गया, प्लस का, ये प्लस और ये माइनस का, तो 1a², और सिंपली यू कैन राइट a²।
यहाँ भी 3 में से 2 गए तो अगेन 1b², राइट। लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, प्लस का साइन। अब ये साइन यहाँ पे खत्म हो गया, साइन कौन सी रेड वाले लगाए वो आपके साइन हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। अब इस केस में कैसे होगा, -4a² + 3b²। अब ये जो माइनस है वो जब इन साइड जाएगा तो ये साइन चेंज करता हुआ जाएगा। देखो माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, दोनों के साइन चेंज करने, एक को नहीं करना, बोथ साइंस विल चेंज। फिर हम इकट्ठे करेंगे इनको, और हमारा सेम वही आंसर हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है, खास करके यहाँ सब्ट्रैक्शन हो अगर तो यहाँ साइन चेंज करने हैं, और माइनस बाहर होगा अगर हॉरिजॉन्टल मेथड में जाएंगे तो माइनस बाहर है तो इंटरनल इंटीरियर सभी साइन चेंज कर देंगे। समटाइम इसमें से क्वेश्चन आता है कि कोई दो को ऐड करके उसमें से 3 माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने मेथड जो एडिशन का करवाया आपको पीछे वो भी आपने माइंड में रखना है, और ये सब्ट्रैक्शन का मेथड भी, जिसको सम SUM सम लिखा हो उसमें प्लस कर देना उनको, राइट, ऐड कर देना उनको। और फिर सब्ट्रैक्शन करते हुए ध्यान रखना फ्रॉम के बाद जो लिखी टर्म वो पहले लिखनी है, उसको माइनस करके साइन जरूर चेंज करने हैं नीचे। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज होंगे, एडिशन के लिए साइन चेंज नहीं होंगे, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ बचा है सिर्फ फाइंडिंग द वैल्यू। तो आपको a और b की वैल्यू दे रखी है, आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। मींस इस चीज का ध्यान रखना है आपने, दिस यू हैव टू केप्ट इन माइंड। 2a का मतलब है 2 × a, ठीक है जी। अगर इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें, बट इसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो 2a कैसे लिखा जाएगा, 2 × a और 3 × b। तो a और b की वैल्यू पुटअप करनी है, 2 × 2 - 3 × 3, 2 2 = 4 -9 -5, ठीक है। इस तरीके से हमें वैल्यूज पुटअप करके इसको निकालनी है। याद रखना है मल्टीप्लिकेशन होती है दो, 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई विद a। अब z = -9 है, वी हैव टू पुट फाइंड द वैल्यू 2/3। अब z मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय -9 कर देंगे, z की जगह -9 + 6, तो इसकी कटिंग हो सकती है 3 3 = 9 -6 + 6 हो गया, 0 आ गया इसका आंसर, क्योंकि सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0 होगा। तो इस तरीके से आपके अलजेब्रा के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर फाइंडिंग द वैल्यूज, ये 3-4 टॉपिक्स हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन पहले मैंने बताया आपको कि फाइंड द सम, पहले सम निकाल लेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर, कहीं पर 3 एक्सप्रेशन जैसे 2 दी हैं या 3 एक्सप्रेशन दी होती हैं कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू। तो जिनको दो को आपने सम करना उसको पहले सम कर लेना, फिर तीसरे को आपने माइनस कर देना। तो एक चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6। तो अब आ गया चैप्टर नंबर 7, दैट इज लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर्स है, तो इसमें लीनियर से रहेगा। लीनियर का मतलब जो पावर है वो 1 रहेगी, ठीक है जी। इक्वेशन, इसमें पावर 1 रहेगी, एक तो सभी अल्फाबेट्स की, वेरिएबल्स की पावर 1 रहेगी। इक्वेशन मींस इक्वल टू आना जरूरी है। सपोज 3x - 5 = 14, यू कैन टेक दिस वन। तो इसमें 3 है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऑपरेशंस हैं, और इज इक्वल टू का साइन, इक्वेशन है तो इज इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, राइट। तो इसमें 2 हिस्से बन जाते हैं इसके। अगर हम यहां से इसको ब्रेक कर लें तो वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये बाउंड्री लाइन है, दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो एक साइड हमारी ये बन गई लेफ्ट हैंड साइड, और ये बन जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड है। कोई भी बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा उसका साइन चेंज होगा, ये याद रखना। कोई भी
इस साइड से लेफ्ट से राइट जाए या फिर राइट से लेफ्ट जाए तो उसका साइन जरूर चेंज होगा। जैसे इसमें है 3x, तो 5 हम उधर लेके जाएंगे बिकॉज ये जो नंबर है इसमें आपके पास एक वेरिएबल बैठा है ये x, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा, फैमिलीज इकट्ठी होंगी, 4 5 उधर चला जाएगा, देखो +5, तो यहाँ माइनस था चेंज किया प्लस में बदल गया, तो टोटल हो जाएगा 19। अब 3x, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है 3 के बीच में क्या होता है, आपको पहले बताया मैंने। 3x का मीनिंग क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय x, तो मल्टीप्लाई है तो वहां क्या होगा, प्लस जो है वो चेंज होगा माइनस में, माइनस चेंज होगा नेचुरली प्लस में, मल्टीप्लाई चेंज होगा नेचुरली डिवाइड में, अगर डिवाइड होगा तो चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो रिवर्स होंगे चेंजेस। तो अब ये मल्टीप्लाई है तो x यहीं रह जाएगा क्योंकि हमें इस वेरिएबल की वैल्यू ही निकालनी है। 19, ये 3 जो है ये ट्रांसफर होएगा दूसरी तरफ, देखो डिवाइड हो गया, यहाँ क्या था मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो गया डिवाइड, तो जैसे डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई चेंज टू डिवाइड, तो इस तरीके से सभी ने चेंज करना ही होता है जब भी वो क्रॉस करेंगे दूसरी तरफ, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, तो इस चीज को अपने माइंड में पूरा रखना है। नाउ वी विल सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस linear equations and also we will do the sum, check the answers. Now we have these 2 questions with us, solve and check। पहले इसी को करते हैं हम, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो -1 इज व्हाट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ ले जाओ, 2x क्रॉस करेगा और अपना साइन बदल लेगा, देखो माइनस प्लस -8 2x, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई है तो -8/2 -4, डायरेक्ट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ सॉल्व एंड चेक। चेक का मतलब होता है जो आपने आंसर निकाला है क्या ये सही है कि नहीं, पहले हम इसके लिए करेंगे फिर इसका भी आपको चेक करके दिखाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये 5x वेरिएबल वाला क्वेश्चन, जो वेरिएबल वाला नंबर है वो इस साइड, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 5x को इधर ट्रांसफर करेंगे, 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, आपस में फैमिलीज इकट्ठी, 3x 5 प्लस का है, चेंज द साइन, 2 8 ट्रांसफर होके जा रहा है, चेंज द साइन। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है लीनियर इक्वेशंस के अंदर साइन चेंज करना, अगर साइन चेंज करना आप भूल गए सारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। -2x -6, बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन लगेगा, ऑपोजिट साइंस की सब्ट्रैक्शन होती है, तो x इज इक्वल टू -6/-2, तो x इज इक्वल टू 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 3। अब हम इसको करेंगे चेक। चेक के लिए क्या करना है आपने, ये लेफ्ट हैंड साइड पकड़नी है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 3x + 8, 3 + 8 9 + 8 मीन्स 17, तो ये अगली लेफ्ट हैंड साइड आपकी। फिर राइट हैंड साइड पकड़नी है, राइट हैंड साइड, इसमें वैल्यू पुट करनी जो भी करवाया था आपको, फाइंडिंग द वैल्यू, 5x + 2, तो 5 हमें पता है 5x क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है जी, ये क्या होता है 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो इसलिए आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या है 3 + 2, 5 3 = 15 + 2 17, तो again we get the same value 17 and 17, so left hand side is equal to right hand side, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे if we have a right value here। अगर हमारे पास यहाँ वैल्यू सही होगी तो आंसर हमारा आएगा, अगर हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देंगे या गलत हो जाएगा, यहाँ से कुछ हमारी मिस्टेक होगी, तो ये कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। उससे हम पता लग जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड इक्वल नहीं आ रहे, और इसका मीन्स ऊपर कहीं मिस्टेक है, वी कैन चेक दैट। तो ये उसी के लिए होता है कि चेक करने के लिए कि हमारा जो सोल्यूशन है तो राइट है कि नहीं। अभी हमारा आंसर सेम है तो एब्सोल्युटली ओके। अब यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे, इसी चीज को चेक करेंगे अगर हम, तो x की वैल्यू यहाँ है -4, यहाँ पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, 2x -1 2 × -4 -1 बस माइनस माइनस, -4 2 8 -1, दोनों सेम साइन, एडिशन साइन जिसका मर्जी लगा दो, -9
तो राइट हैंड साइड कितनी है -9, सेम, मतलब हमारा आंसर ठीक है। अगर हम अपना आंसर गलत करके देख लें, इसको प्लस कर दें, तो यहाँ आंसर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ आंसर हमारे पास 9 की जगह 7 कुछ समथिंग आ जाएगा। तो इसका मीनिंग हमारा आंसर मिस्टेक है। तो जहाँ भी मिस्टेक हो चेक करने के लिए ये चेक होता है। तो इस तरीके से आपने करने हैं सॉल्व एंड चेक वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है लीनियर इक्वेशंस आल्सो। तो हमने 7 चैप्टर लीनियर इक्वेशंस भी खत्म कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर 13, दैट इज कॉल्ड सर्कल्स। तो सर्कल्स वेरी सिंपल चैप्टर। सबसे पहले सर्कल क्या होता है, सम पॉइंट्स विच आर एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक हमने फिक्स पॉइंट ले लिया जो नहीं हिल सकता, उससे हमने एक फिक्स डिस्टेंस पे हमने पॉइंट्स लगा लिए। तो ये सभी जब पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये दीज फॉर्म द सर्कल। तो ये हमारे पास एक सर्कल बन के आ जाएगा। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इसको हम कहेंगे सेंटर, जहां पे हमें अपनी कंपास रख के इसको घुमाना है। और जो डिस्टेंस सेंटर और इनके बीच में होगा, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। तो ये रेडियस हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल। तो कंपास जहां पे हमने प्लेस करनी है, कंपास प्लेस करके घुमाएंगे तो वो सारा हमारा सर्कल बनेगा। और जो पॉइंट होगा जहां पे हमने कंपास रखी है, दैट इज कॉल्ड सेंटर, राइट। तो अब सर्कल्स में एक आता है, अगर हम सर्कल पूरा ही ना बनाएं और हाफ बना दें, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। पूरा नहीं है, हाफ है। पूरा तो ऐसे बनेगा, लेकिन ये हाफ है सर्कल, तो दिस इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। अगर हम इसको और हाफ कर दें तो एक पार्ट ले लें इसका भी ऐसे करके, तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, क्वाड मतलब होता है फोर्थ पार्ट। तो चौथा हिस्सा सर्कल का हम क्वाड्रेंट कहेंगे। आधा सर्कल सेमी सर्कल और पूरे सर्कल को तो सर्कल कहते ही हैं। फिर इसमें आ जाता है जी, अगर हमारे पास ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये क्या है रेडियस। अगर दो रेडियस बना दिए जाएं और वो सेंटर से पास करते हों, मेनली जरूरी है कि सेंटर से पास करें, तो इसे हम कहते हैं डायामीटर। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं डायामीटर। तो रेडियस, तो डायमीटर तो क्या हो गया डायमीटर, तो रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि 2 रेडियस हमारे पास हो तो डायमीटर बनता है। और अगर हमने रेडियस निकालना है तो हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, डायमीटर को हाफ कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड द रेडियस। तो इसलिए रेडियस और डायमीटर आपस में इंटररिलेटेड है। और अगर ये लाइन जो पास कर रही है सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से, ये सेंटर है, और अगर इसमें से पास ना करे ऊपर से निकल जाए, ये लाइन सेंटर में ना पास करते हुए ऊपर से निकल जाए, तो इसको हम रेडियस नहीं बोल सकते। दिस इज कॉल्ड अ कोड ऑफ सर्कल। इसको हम कोड बोलते हैं। अगर वो सेंटर से पास कर जाएगी, जैसे ये कर रही है सेंटर से पास, ये इसका सेंटर है O, अगर सेंटर से पास करेगी तो डायमीटर, अगर नहीं करेगी तो कोड कहेंगे इसे, ध्यान रखना है ये चीज। और सबसे लंबी कोड यही बन सकती है जो सेंटर में पास करे, इसको डायमीटर कहा जाता है। अब इसके बाद आता है ये आपके पास, सपोज ये सर्कल है और सर्कल के बीच में ये हमने जो इसकी गोलाई है पूरी, ये गोलाई जो है इसकी
ये सारी, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। पेरीमीटर भी कई बार लिखा मिलता है हमें, लेकिन इसे मोस्टली कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ये सारी गोलाई को है, ये सर्कमफ्रेंस है। बीच में क्या होता है, एरिया। जैसे ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल वगैरह के हमारे पास पेरीमीटर आता है, तो वैसे ही सर्कल का ये पेरीमीटर होता है सर्कमफ्रेंस, और सेंटर वाला पोर्शन होता है एरिया। अगर इसके सर्कमफ्रेंस का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से सपोज इतना हिस्सा हम कट कर लें, ये वाला हिस्सा जो है डार्क कर रहा हूँ ये निकाल लें, दिस इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ये आर्क है, जब हम कंपास रखते हैं ऐसे आर्क लगाते हैं तो इस आर्क होती है सर्कल की। ये कहीं भी बनाई जा सकती है सर्कल के किसी भी जगह पे। पूरे हिस्से को हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंस, रेडियस, डायमीटर, ये सारी चीजें और कोड, ये आपको सभी चीजें नॉलेज में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्कल। सर्कल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, यू हैव टू टेक अ स्केल। स्केल लेके आपने एक पॉइंट लगाना है। सपोज हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल लगाना है, तो आपने स्केल से एक 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेनी है। जैसे लग गई 3 सेंटीमीटर, दिस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर। इस पोजीशन पे आपने कंपास रखनी है, ये है, यहाँ पे आपकी कंपास की आ गई पिन, और यहाँ पे आपकी आएगी जो पेंसिल है, राइट। पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, पिन वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा, और इसको फिक्स करके इस हिस्से को ऐसे घुमा देना है, तो आपके पास सर्कल बनेगा प्रॉपरली। विद द हेल्प ऑफ अ कंपास यू कैन मेक द सर्कल लाइक दिस। जितने भी सेंटीमीटर का है आपने उस हिसाब से उसका बना देना सर्कल। अगर आपको डायमीटर दिया हो, डायमीटर से सर्कल नहीं बनाना। सपोज डायमीटर दिया आपको 14 सेंटीमीटर, सर्कल बनाओ, तो आपने क्या करना है, इसको रेडियस में चेंज करना है। 14/2 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की आप लाइन सेगमेंट लगाओगे ऐसे। तो यहाँ रखोगे कंपास, और यहाँ आपकी आएगी पेंसिल वाली नॉक। ठीक है जी, और इसको फिर आपने ऐसे रोटेट कर देना है। रोटेट करके आपके पास 7 सेंटीमीटर का सर्कल तैयार हो जाएगा। इसको ऐसे घुमा देने सारी सर्कल। एक यहाँ पे फिक्स्ड रखना है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड द फिक्स्ड पॉइंट, ये नहीं हिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सर्कल। ध्यान रखना है, डायमीटर दिया हो तो उससे पहले रेडियस में चेंज करना है, फिर सर्कल बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना। Only with the help of radius we can make the circle. Next 13 हमने फिनिश कर लिया सर्कल भी। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर अपना आज का, पेरीमीटर एंड एरिया, 15th चैप्टर। तो इसमें 2 चीजें हमारे पास हैं। वन इज कॉल्ड द रेक्टेंगल, क्या है हमारे पास रेक्टेंगल, और एक हमारे पास है स्क्वायर। रेक्टेंगल का हमें नॉलेज है कि उसके ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये लेंथ होती है, इसे हम ब्रेड्थ कह देते हैं, और इसकी साइड्स ही होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो 2 चीजें यहाँ पे आती हैं जी, पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर बना पेरिफेरल से, यानी कि जो बाहर वाला इलाका, जहाँ पे हम बाहर की तरफ, यानी कि ये जो बोर्ड की आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है सारी, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। इन सभी को हम जोड़ दें तो बाउंड्री को ऐड कर दें सभी को, तो इस बोर्ड का पेरीमीटर आ जाएगा, राइट। मेजरमेंट करना बाउंड्री को पेरीमीटर कहलाता है। एरिया सेंटर वाला पोर्शन, यानी जो जगह पे, जिस पोर्शन पे आई एम राइटिंग दिस, मैं जो लिख रहा हूँ सारा, ये एरिया पे लिख रहा हूँ, पेरीमीटर पे नहीं। यू आर सिटिंग इन अ रूम, तो रूम के जहाँ पे वॉल्स है सारी बाहर की तरफ, तो वहां पे हमारा पेरीमीटर है, अगर हम सभी को प्लस कर दें तो। और सेंटर जहाँ पे बेड्स हैं, चेयर्स रखी होती हैं, दैट इज कॉल्ड एरिया। तो ये रेक्टेंगल है।
इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर बाहर लिखूंगा क्योंकि बाहर की तरफ है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, सभी को ऐड करेंगे 2 टाइम्स L 2 टाइम्स B, तो फार्मूला यहाँ से 2 कॉमन निकाल के L प्लस B बन जाएगा, राइट। और अगर हम इसकी बात करेंगे एरिया की, तो एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बारी आ गई स्क्वायर की, स्क्वायर की सभी साइडें इक्वल, तो इसका पेरीमीटर अगर हमें लिखना हो तो ए और डी, एल और डी दोनों की जगह ए आ जाएगा, तो बन जाएगा ये 4A, और यू कैन से इट 4 मल्टीप्लाई बाय साइड भी इसे बोला जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय ए, एल इंटू बी है या A मल्टीप्लाई ए, यानी कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो दो दो साइडें हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं। ये तो था सिंपल पेरीमीटर और एरिया निकालना। अगर इसी क्वेश्चन में हम लेंथ निकालना चाहते हैं देन व्हाट टू डू, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये एरिया पकड़ेंगे अपॉन लेंथ इधर है, दूसरा कौन है ब्रेड्थ, वो नीचे लिख देंगे। और अगर हमने ब्रेड्थ निकालनी है तो सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, एरिया अपॉन कौन बच गया लेंथ, तो लेंथ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लेंथ और ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं इफ एरिया इज गिवन। इन दिस वे अगर हमें साइड निकालनी हो तो साइड निकालने के लिए हम पेरीमीटर को क्या है ये 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी साइड। तो इस तरीके से क्वेश्चन चेंज करके भी आ सकता है। तो वी हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूला। ये फार्मूले आपके सारे इस चैप्टर के अंदर यूज होंगे पेरीमीटर एंड एरिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास एक आया, वन वांट्स टू पेस्ट अ सीनरी ऑन द वॉल ऑफ लेंथ, ये लेंथ है इसकी, ठीक है जी, ये इसकी ब्रेड्थ है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है हमें पूरी कॉस्ट निकालनी है कितनी लगेगी उसकी। सब कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने उठा लेनी है लेंथ, लेंथ कितनी है 36.5 सेंटीमीटर, फिर उठानी है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 15 सेंटीमीटर, राइट। फिर आप क्योंकि वो स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है तो आप एरिया निकालोगे, तो एरिया ऑफ पेंटिंग कितना है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस 36.5 इंटू 15, तो यहाँ सेंटीमीटर मेंशन कर देना, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 547.5 समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर हम इसे लिख सकते हैं। कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर भी, एक ही बात है, ₹1। तो कॉस्ट ऑफ कितना आंसर आया हमारे पास 447.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई कर देना 547.5 से, तो जब इसे हम रुपीज़ में चेंज करेंगे तो आएगा 547.50 पैसे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो करना कुछ नहीं, हमें चेक करना है इसमें एरिया आएगा कि पेरीमीटर आएगा। जब सेंटर चीज़ की बात करी गई हो तो एरिया, जब बाउंड्री की बात की है तो उसमें आएगा पेरीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ एंड फार्मूले आपके पास हैं, उसके हिसाब से आंसर निकाल देना। कोस्ट में चेक करना होता है कि इधर आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर सेंटीमीटर है, सीधा रुपीस से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो दिस टू फाइंड द विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला। So at last, 2 more questions of this perimeter and area. One is length of square field. So क्या चीज़ है जी, लेंथ है 18 मीटर, तो आपने लिख देनी है, स्क्वायर है ये तो नेचुरली ये साइड होगी, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 18 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब फेंसिंग क्या होती है, कोई भी पोर्शन है उसकी बाहर तरफ हम क्या करते हैं, ये फेंस करते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ फेंस करते हैं। तो बात हो रही है पेरीमीटर की, तो यहाँ पे हम निकालेंगे पेरीमीटर किसका, स्क्वायर फील्ड का। क्या होता है फार्मूला, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड,
72 मीटर। दूसरी चीज ये देखनी है, यहाँ पे लिखा है पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर होता तो एरिया होता, ये लिखा है पर मीटर, मीन्स हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो ये दो तीन चीजें हमें पता लग सकता है कि हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, विद दिस और विद दिस। तो अगर किनारे की बात हो रही है, बाउंड्री की, कोई स्पोर्ट्समैन दौड़ रहा है वो बाउंड्री पे दौड़ेगा, ठीक है, फेंसिंग बाउंड्री पे होगी, ठीक है जी, आउटर पोर्शन सारा। तो अब इसका रेट निकालना है फेंसिंग का। तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर मीन्स होता है 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट है ₹2। तो कॉस्ट ऑफ 72 मीटर की हो जाएगी 72 मल्टीप्लाई बाय ₹2 जो है हमारे पास। तो अब यहाँ यूनिट रुपीस के लगेंगे, तो 144 रुपीस हमारे पास आ गया कॉस्ट। इस तरीके से निकालना है। पेरीमीटर आपको बता दिया, स्क्वायर का पीछे हमने किया था एरिया रेक्टेंगल फीट का। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। रमन हैव अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट है उसके पास, एरिया जिसका दे रखा है 175। व्हाट इज दिस एरिया? तो एरिया हमें दे रखा है, हमने एरिया लिख लिया जी। पहले सबसे पहले जो गिवन में है वो लिख लो ताकि हमें पता लगे करना क्या है। देन विड्थ, तो विड्थ है 7 सेंटीमीटर विड्थ। तो हमें निकालना क्या है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ मैंने बताया था आपको पहले फार्मूला, स्टार्टिंग में फार्मूला में हमें क्या करना है, एरिया अपॉन लेंथ उधर है तो उधर विड्थ छिड़ दो, इधर विड्थ फेंक दो बस। और क्या, विड्थ नीचे रख दोगे, एरिया डिवाइडेड बाय 175 डिवाइडेड बाय 7। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं हम। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो 7 2 जा 14, 2 आ गया, 7 5 जा 35। तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो ये यूनिट जरूर लिखना है जी आपने, ठीक है जी, ये यूनिट जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें एरिया गिवन हो, उसमें लेंथ हो या विड्थ हो, तो उस हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो दिस इज द पेरीमीटर एंड एरिया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट चैप्टर। सो दिस इज द, बहुत फास्टली करवाई है, ये आपकी रिवीजन थी 4 चैप्टर्स की, 6 7 13 एंड 15 की ये रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होती है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड मी फॉर देयर सॉल्यूशंस। थैंक यू।